Do start with Bismillah. Do end with Alhamdulillah. Do appreciate with Subhanallah. Hope with Inshallah. And life will be blessed by Allah. In the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. I'm Shubhana Noor, your host for today's session, and student of BS Biotechnology, currently in 7th semester. I hope all of you are doing well and in the best state of your iman. I welcome all of you on the behalf of entire team of AEF. Thank you so much for your precious time. For that you are here. Reading and reflecting over the Quran fulfills an Islamic duty. So let's start our session with the recitation of Holy Quran. For that, I would like to call Fatma Aziz. أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد كفوا أحد صدق الله العظيم. Jazakallah. You all know the reason why all of us are gathered here. So now, telling you, as we all know, the topic for today's session is self-actualization. So what a man can be, he must be. This need we call self-actualization. Without further delay, let me introduce our guest speaker, Ma'am Farhad Jan. Let me tell you who she is. She is a clinical psychologist and has done her MS Clinical Psychology from International Islamic University, Islamabad. She has 4 years field experience and is greatly involved in research, teaching, and clinical practice. She has been part of different seminars and conferences related to psychiatry and psychology. She has worked with esteemed organizations as a psychologist. Assalamu alaikum, ma'am. I hope you are doing well. I cordially welcome you, ma'am. Thank you so much. Welcome, ma'am. I welcome you on behalf of whole management of AEF. Kindly enlighten us with your words of wisdom. Over to you, ma'am. Thank you so much. First of all, assalamu alaikum to everyone who is listening me right now, and welcome to this webinar session. I'm very thankful to you that you have spared your precious time for this session. So we're going to formally start it. As you have seen the flyer of this webinar, this is about the self-actualization. So first of all, I want to know from your side that what you know about this term, कि self-actualization क्या है, हम किसको self-actualization कहते हैं. So I need a response from the participants of this session. Please tell me कि for you what self-actualization is. आप कैसे define कर सकते हैं self-actualization को? Okay, खुद आगाही, good. Anyone else? अपनी skills को पहचानना, very true. खुद हकीकत पसंदी, realize your strengths and weaknesses, very true. To know about yourself, खुदी, as Iqbal said, very true. Yes, Hina? खुदी, yes, self-awareness, बिल्कुल. Reaching to our full potentials, true. To become successful, to reach on one complete potential, good. बिल्कुल बिल्कुल आप सब लोगों के responses बिल्कुल ठीक हैं. Self-actualization basically जो term है, it is a combination of two words. One is self and second one is actualization. Actualization is something that is linked with the realization. आगाही होना, awareness होना, realize करना, किसी चीज़ को जानना, पहचानना, वो कहलाता है. और जब से हम लोग self की बात करते हैं, so it is totally linked with ourself. मतलब हम personally उस चीज़ को कैसे encounter करते हैं. So if we try to define the self-actualization, it refers to the highest level of psychological development where the person is able to fully realize after his basic body needs and ego needs have been fulfilled. कि self-actualization एक वो चीज़ है जो एक highest level पे एक इंसान की psychological development का part है, जिसमें जब इंसान अपनी physical, अपनी body और अपनी ego से related needs को satisfy कर चुका होता है, fulfill करता है, उसके बाद एक इंसान उस highest stage की तरफ जाता है, जिसमें definitely वही सारी चीज़ें शामिल हैं जो आप लोगों ने अपने responses में बताई, कि इंसान अपने आप को पहचानता है, अपनी potential को, अपनी skills को, अपनी creativity को, अपनी intellectual abilities को पहचान कर एक level को achieve कर सकता है. Self-actualization basically एक process है जिसके थ्रू एक इंसान को गुजरना पड़ता है और उसके बाद जाके वो एक highest level को achieve कर सकता है. It is also referred to as a basic tendency of a person to realize their abilities. मतलब अपने आप को पहचानना basically self-actualization कहलाता है. इससे relevant हमने different words भी सुने होंगे, self-knowledge, self-awareness, self-identification, self-realization जैसे terms भी as a synonym इसके साथ use किए जाते हैं.
So हम लोग इससे पहले कि हम नेक्स्ट कंटेंट पे जाएंगे, आई वांट यू टू परफॉर्म अ लिटिल एक्सरसाइज जिसको हम वैल्यू रिफ्लेक्शन का नाम देंगे. इट विल हार्डली टेक योर maybe 5 to 7 minutes, but I need the participation of you people. Value reflection की एक exercise है that is very close linked with the self actualization. I'm going to give you the instructions and you just have to follow them. Okay? Okay. So in this exercise, what you need to do is simply you just have to sit, relax. It's up to you. You want to do this exercise with your closed eyes, with your open eyes. It's totally your choice. Give yourself for 5 minutes and think about the core values of your life. कोर वैल्यूज से मुराद आपकी ज़िंदगी के ख़ास मकसद, आपकी ज़िंदगी का जो एक बहुत अहम पहलू है, आपकी ज़िंदगी की वो चीज़ें जिनकी आप डिज़ायर करते हैं, जिनके लिए आप ख्वाब देखते हैं, जिनकी आप विश करते हैं, या जो आपका एक ड्रीम लाइफ है, बेशक वो पर्सनल है, प्रोफेशनल है, जिस भी तरह से है, आप उन चीज़ों को अपने माइंड में लेके आए एंड थिंक अबाउट दैम. Give yourself 5 minutes just. And it must be realistic. Keep this thing in your mind. It must be realistic. It must be according to your potentials, according to your skills. आपने उन 5 चीज़ों का, उन 5 वैल्यूज़ का सोचना है जिनको आप हासिल करना चाहते हैं, जिनको हासिल करने के लिए आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, जो हकीकत में आप हासिल कर सकते हैं. Reflect on yourself, reflect on your thoughts, reflect on your core values. Right now you're doing value reflection exercise and hopefully आप सब लोग perform कर रहे हैं. आज के सेशन में at the end of this session I want you people to be at the level के जहाँ पे आपको समझ आ जाए कि हम कैसे सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन हो सकते हैं, हम कैसे अपनी पोटेंशियल को, अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को जान सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं. जैसे कि एक पार्टिसिपेंट ने रिस्पॉन्स किया कि अल्लामा इकबाल का जो खुदी का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बहुत क्लोजली लिंक्ड है. So I'm very much hopeful कि after doing this exercise आपको काफ़ी सारी चीज़ें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के हवाले से क्लियर होंगी. Inshallah. Okay, so if someone has completed the exercise, so please start sharing your experience और क्या आपने सोचा, आपने क्या values, किन values पे reflect किया. If someone is done with the exercise, please respond. I think it is better if you unmute the mic and then just speak about them. Ma'am, I have done the exercise. Okay. Yes, ma'am. The first value that I have discovered, ma'am, मेरा जो एक basic purpose है वो एक तो ये है कि healthy lifestyle अपनाया जाए. Good. कि आप properly एक independent हो जाएं properly, और आप ये कि उसकी वजह से आप क्या कर सकेंगे, आप दूसरों की help out अच्छे तरीके से कर सकेंगे. जितना आप खुद self independent होंगे और healthy होंगे, उतना ही आप दूसरों की help out अच्छी कर सकेंगे. True. Is anyone else? Thank you, Adiba. Anyone else? You're done with this value reflection exercise and want to share about his or her experience? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Okay, so first of all, I want to become a better Muslim. Good. And second, I want to work on myself, improving, work on my skills. And then also I want to become financially independent. Okay, good. Thank you, Aisha. Anyone else, please? Voluntarily बताएं कि आपने इस एक्सरसाइज के दौरान किन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट किया, किन वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट किया, क्या सोचा आपने, जो कि डेफिनेटली बहुत क्लोज है आपके अपने ज़ात के साथ. Okay, someone has shared in the chat box that integrity, honesty, diligence, discipline are my core values. Okay, thank you.
Yes, kindness, honesty, discipline by Nabiha. Personal and creative self-growth. True. Please अपने mics को unmute करके verbally बताते जाएं. So that I come to know कि हम जो लोग आज के सेशन में हैं, लोग क्या जानते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम नूर. The values I have written so far is letting go of my fears, and the purpose I think is doing good for people, becoming Okay. independent to such extent that I am able to help others, Hmm. and I want to have a purpose in life, Okay. Good. which I'm still looking. Yeah. Oh, good. Thank you Thank so you. much. Thank you. Thank you for your responses. I think we should move forward. बिल्कुल आप लोगों ने जो अपने जिन चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के साथ. सो हम कंटिन्यू करते हैं वेबिनार को. प्लीज़ मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, इस सेशन के अलावा कभी किसी ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में सुना है? कोई इससे रिलेटेड कोई थ्योरी कभी पढ़ी हो? बेसिकली तो ये कॉन्सेप्ट आपका सोशल साइंसेज के साथ लिंक्ड है बहुत ज़्यादा, पर्टिकुलरली साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है. ओके, आयशा ने कहा कि ये उनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है. ओके. एब्राहिम मैस्लो, वेरी ट्रू. बेसिकली जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी थी वो एब्राहिम मैस्लो ने दी थी. बिल्कुल जी, मैस्लो हायरार्की थ्योरी, एब्राहिम मैस्लो, वेरी ट्रू. इट मीन्स कि काफ़ी सारे लोगों को इसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के बारे में आइडिया है. नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज़ मूव कीजिएगा. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकली उसको एब्राहिम मैस्लो जो कि एक ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता था, उसने इस कॉन्सेप्ट को दिया. और उसने कहा, उसने बेसिकली जो बात स्टार्ट की, ही स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नीड्स, कि इंसान की ज़रूरियात क्या होती हैं. ठीक है, जाहिर है बहुत सारी ज़रूरियात हैं हमारी ज़िंदगी की जो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसिडर करते हैं कि जी खाना पीना सोना जागना, मनी, टू हैव रिलेशंस, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं हमारी. ठीक है, तो एब्राहिम मैस्लो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क उसने परफॉर्म किया, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि ही हैज सेट द हायरार्की ऑफ द नीड्स. उसने कहा कि इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो बेसिकली एक हायरार्की की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जिसको उसने 5 डिफरेंट लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था. जिसमें सबसे पहला लेवल उसने कहा कि वो एक फिजियोलॉजिकल नीड्स का लेवल आता है, जिसमें इंसान सबसे पहले जो स्ट्रगल करता है वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए करता है. बेसिक नीड्स क्या होंगी? हमारी फूड, हमारा शेल्टर, हमारा खाना पीना जागना, जो हमारे बेसिक बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं जो हमारी ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहले तो इंसान की जो कोशिश है, या इंसान जो स्ट्राइव करता है, वो अपने उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए करता है. और जब हम अपनी इस फिजियोलॉजिकल नीड्स की स्टेज को अचीव कर लेते हैं तो फिर इंसान सेकेंड स्टेज की तरफ जाता है, जिसको उसने कहा कि इंसान सेफ्टी नीड्स की तरफ स्ट्रगल करता है. सेफ्टी नीड्स में क्या है कि इंसान को अपने जानो माल की हिफाजत की ज़रूरत पड़ती है. आफ्टर गेटिंग और अचीविंग द स्टेज ऑफ सेफ्टी, वी विल मूव फॉर द थर्ड स्टेज, जिसको उसने लव एंड बिलोंगिंगनेस का नाम दिया, कि हम तीसरी स्टेज पे जाके जो इंसान स्ट्रगल करता है वो रिलेशंस के लिए करता है, वो फॉर बीइंग लव्ड के लिए करता है, वो केयर के लिए करता है, वो लोगों के साथ इंटरेक्शन और अच्छे ताल्लुकात को कायम करने के लिए स्ट्राइव करता है. देन फोर्थ स्टेज पे उसने कहा कि इंसान जो अपनी नीड्स जिनके लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, दैट इज़ फॉर द सेल्फ एस्टीम, दैट इज़ फॉर द सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है, उसको अचीव. और जब ये सारी स्टेजेस एक इंसान की ज़िंदगी में अचीव हो जाती हैं तो सबसे हाईएस्ट स्टेज आती है, जिसको उसने नाम दिया था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, जो बेसिकली आज का हमारा कोर टॉपिक है आज के इस वेबिनार का. एब्राहिम मैस्लो के इन सारी नीड्स में उसने कहा कि हर स्टेज आपकी इंपॉर्टेंट है और स्टेप बाय स्टेप है. इफ़ यू आर नॉट अचीविंग योर फर्स्ट स्टेज ऑफ योर हायरार्की नीड, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज. ठीक है, एक इंसान है वो सबसे पहले अपने फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, बाद में उसको सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिलेशंस, लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, वो चीज़ें उसके लिए बाद में आती हैं. एंड इन सबसे ऊपर की जो नीड है, दैट इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. सो दिस इज बेसिकली आप समझ लें कि समरी ऑफ द थ्योरी दैट हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय द एब्राहिम मैस्लो. होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गई होगी. प्लीज मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. यस, ये स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले फिजियोलॉजिकली आपकी जो बॉडीली नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए इंसान स्ट्रगल करता है, फिर वो सेकंड स्टेज पे जाता है, दैट इज फॉर द सिक्योरिटी. देन मूव फॉर द थर्ड स्टेज फॉर बीइंग लव्ड, बिलोंगिंगनेस, रिलेशन. नेक्स्ट इज द नीड फॉर सेल्फ एस्टीम, नीड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट. And the last and the highest level of human hierarchy need is self-actualization. And step by step आप इन सारी stages से गुजरते हैं. Please next slide.
Okay. Self actualization क्या है? Self actualization कब होती है? It occurs when a person is able to take full advantage of his or her talent while being mindful of his or her limitations. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का वो प्रोसेस तब हो सकता है जब एक इंसान को पता हो कि उसने अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी पॉजिटिविटीज, अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स से एडवांटेज कैसे हासिल करना है, उससे उसने काम कैसे लेना है। लेकिन वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स, अपनी पॉजिटिविटीज, अपने टैलेंट्स, अपने स्किल्स, एबिलिटीज के साथ साथ इंसान को अपने जहन में अपनी वीकनेसेस और अपनी लिमिटेशंस को भी रखना है। अगर हम ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं प्रॉपर्ली, देन वी आर एबल टू अचीव द स्टेज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर उसके अलावा आपको एक इमेज नजर आ रहा होगा जिसमें आई एम का वर्ड यूज किया गया है। सो आई वांट यू पीपल टू बेसिकली कंप्लीट दिस सेंटेंस विद सिंगल वर्ड। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, बेसिकली हम अपने आप को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ। आई एम एक्सट्रोवर्ट, वेरी गुड। सो ओके, आई एम अडेप्टिव एंड ऑडेशियस, आई एम केयरिंग। सो ये सारे वर्ड्स जो आप यूज कर रहे हैं स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए आई एम को, सो बेसिकली ये वो चीजें हैं जो आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, जो आपको पता है कि आपके अंदर का टैलेंट है, आपके अंदर की पॉजिटिविटी है, आपके अंदर की स्किल्स हैं, या आपके प्लस पॉइंट्स हैं आपकी पर्सनालिटी के, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ इंसान को अपनी लिमिटेशंस, अपनी वीकनेसेस, अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी अपने माइंड में रखना है। ओके ओके जी, नेक्स्ट, मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमें कैसे पहचान हो सकती है कि कोई इंसान सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे कुछ आप समझ लें कि कुछ पॉइंटर्स मेंशन हैं जो कि ओके, आई एम एक्सप्लोरेटिव, थैंक यू दीपा फॉर योर रिस्पॉन्स। कुछ पॉइंटर्स हैं जिनके बेस पे हमें एक आइडेंटिफिकेशन मिल सकती है एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन की, जिसमें सबसे पहले है दैट इज फुट पीक एक्सपीरियंसेस। तजर्बे का होना बहुत ज़रूरी है। इंसान अपने तजुर्बों से, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। सेकेंड चीज़, दे हैव अ कंटिन्यूस सेंस ऑफ एप्रिसिएशन। उनके अंदर इस सलाहियत का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकें, चीज़ों की तारीफ कर सकें, चीज़ों को सराह सकें, चीज़ों को एक्नॉलेज कर सकें। थर्ड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन्वॉल्व्स द एक्सेप्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आई थिंक जो सबसे पहले आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, वो तस्लीम करना होता है कि आप जो हैं, आप जैसे हैं, आप उस चीज़ को तस्लीम करें। फोर्थ इज कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल आर रियलिस्टिक। आपका हकीकत पसंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हकीकत पसंद नहीं है, सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज को हासिल करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा प्रॉब्लम सेंटर्ड, कि the person must be able to identify, to understand and to evaluate the problem of his or her life, ठीक है, and the person must be independent. And the last is the self-actualization, or the people who follow the self-actualization, they actually value the privacy. That is very important identification of a self-actualized person. So hopefully ये कुछ pointers हैं जो अगर आप अपने mind में रखेंगे, so आपके लिए easy हो जाएगा self-actualization को समझना। जी, move to the next slide please. ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन हैं कि एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इंसान के क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसकी पर्सनालिटी किस किस्म की होती है। सबसे पहले वो सेल्फ एक्सेप्टिंग होगा। मैंने जैसे कि आपको पहले कहा कि आप जो हैं, जैसे हैं, अपने आप को एज इट इज एक्सेप्ट करें। सेकंड इज ओपन एंड स्पॉन्टेनियस, बी ओपन, बी एक्सट्रोवर्टेड, लाइक बी ओपन टू फील द लाइफ। अपनी जिंदगी को एक्सपीरियंस करने का एक जज्बा आप लोगों के अंदर होना चाहिए। बी रियलिस्टिक, be responsible, be autonomous, be independent, definitely enjoy the things and maintain the privacy factor, that is very important, and enjoy the journey, not the destination। कि इंसान मंजिल पे तो फोकस करे, लेकिन उसके साथ साथ आप उस मंजिल को हासिल करने के लिए जिस सफर से गुजरते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको एंजॉय करना बेसिकली आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि जो हमने अभी एक्सरसाइज परफॉर्म की आई एम, तो उस पर आप लोगों ने डिफरेंट मुझे वर्ड्स आपने उस पर आंसर किया, तो वो चीज़ें काफ़ी इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी वो शामिल हैं, ठीक है। सो प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। Okay, very important question. Can everyone become self-actualized? What do you people say? आपको क्या लगता है कि क्या हर इंसान self-actualized हो सकता है? Yes, no, okay. Please give response. No, good. Next, no, no, yes, but no. Neutral जवाब है ये नूर फातिमा का. No, yes, no. One who try to be good. No, बहुत कम. No, depend upon the person. Okay. No. अच्छा, अभी तक जो हमें मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं वो नो को डिनोट कर रहे हैं। बहुत रेयर लोग हैं जो यस की तरफ, ओके, यस के रिस्पॉन्सेज पे आना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, ये जो लोग नो कह रहे हैं, एटलीस्ट मुझे 2 से 3 लोग प्लीज इस चीज पे आंसर करें कि व्हाई दे हैव चोजन द वर्ड नो। उनको क्यों लगता है कि नहीं एक इंसान सेल्फ एक्चुअलाइज हो सकता, क्या रीजंस हैं उसकी?
Please share your thoughts कि आप why you have answered this question no. जिस पे मुश्किल वक्त आता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बी ऑप्टिमिस्टिक थ्रू इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, ओके, क्योंकि मैम इंडिविजुअल की लाइफ बेसिक नीड्स को ही पूरा करने में गुजर जाती है. अ वेरी सॉलिड आंसर, गुड. प्लीज अपना माइक को अनम्यूट करके बोलिए. द पर्सन डोंट वांट टू चेंज हिमसेल्फ, कांट बी पॉसिबल. बिल्कुल, थोड़ा सा वर्बली भी बताएं ना. ये तो मैं आप लोगों के आंसर्स रीड कर रही हूँ. एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एज इट इज अ डिफिकल्ट टास्क. बिल्कुल, लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है कि यार इस स्टेज को हासिल करना कोई आसान काम तो नहीं है. ओके, द पर्सन मैम. यस यस प्लीज. मैम मैंने इसलिए नो बोला था क्योंकि क्वेश्चन ये था कि कैन एवरीवन बिकम सेल्फ एक्चुअलाइज, तो हर कोई नहीं. अगर ये Okay. क्वेश्चन इस तरह लोग ट्राई कर सकते हैं तो फिर ये था कि हाँ सिर्फ वो लोग ट्राई कर सकते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने जो है वो फिर नो बोला. ओके ओके. अच्छा, नाउ टेल मी, जो जिन लोगों ने कहा यस, उन लोगों ने यस क्यों बोला? कि उनको क्यों लगता है कि कोई भी इंसान सेल्फ एक्चुअलाइज हो सकता है? Okay. Aman has responded, ma'am, as you said, enjoy your journey. So if a person can take the things positively, so everyone can reach to self-actualization. Okay. I think at a certain age, mostly adults in this altitude get experience and acceptance. Okay. But my question is कि why you are thinking this कि yes, every person can achieve the state. Please मुझे verbally answer कर दें इस चीज़ का. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. मैम मैंने आंसर किया था यस, और साथ मैंने लिखा था कि हर वो इंसान जो कोशिश करे इसके लिए. बिल्कुल. मतलब कि कोई भी इंसान जो कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन की तरफ जाएगा तो वो कोई भी हो सकता है. तो दैट्स व्हाई आई सेड यस, इट्स पॉसिबल, बट ऑब्वियसली इट डिपेंड. थैंक यू सो मच मरियम, एंड अस्सलाम थैंक यू फॉर वालेकुम. ज्वाइनिंग. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम जी सलाम. जी मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया है कि वो फीलिंग्स भी हैं और वो सोच भी सकता है. तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान जो है अपनी सारी नीड्स पूरी होने के बाद जो है उसको अपनी स्किल्स का ही ना पता चले और उसको अपनी एबिलिटीज का ही ना पता चले. वो सब समझ रहा होता है, फील कर रहा होता है, और एक स्टेज आती है इंसान को लगता है कि मुझे इससे अबव जाना है. ठीक है, उसको कुछ और सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी इनर जो सेटिस्फेक्शन है उसके लिए मजीद कुछ चाहिए होता है. तो उसके लिए वो अपनी स्किल्स को भी एक्सप्लोर करता है, उनकी शार्पनिंग भी करता है, और फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है. इसी सब प्रोसेस में जो है ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक वो पहुंच जाता है. ओके, तो सब कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं है. तो इंसान जो है उसको बहुत प्रायर माइंड दिया अल्लाह ने. आप हैवान नहीं है, वो इंसान को बहुत सारी एबिलिटीज दी हैं. तो फील भी करता है, सोचता भी है, समझता भी है. इसलिए सब कर सकते हैं इस स्टेज पे. ओके, थैंक यू सो मच. अच्छा, अभी इसमें जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया तो कुछ लोगों ने नो बट यस कहा और कुछ लोगों ने यस बट नो भी कहा. तो वो उन्होंने बड़ा कंफ्यूज स्टेट में आंसर किया है. सो वो क्या चीज थी? मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. Okay, ma'am, I want to say something about this. Yes, please. मैंने इसलिए yes but no कहा क्योंकि लाइफ में जिस तरह मैंने अभी मैसेज में लिखा है, डिफिकल्टीज आर पार्ट ऑफ लाइफ एंड दे टीच यू लेसन्स. अब उन डिफिकल्टीज से लेसन लेना ना लेना हमारा काम होता है. कुछ लोग अपनी डिफिकल्टीज को सर पे सवार कर लेते हैं, दे आर नॉट लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, दे आर नॉट एक्चुअली गेटिंग द लेसन. सो जब मकसद ही नहीं समझ रहे होते तो हम लोग उससे फायदा भी नहीं उठा रहे होते. तो अगर हम समझ लें तो हम उससे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, और अगर नहीं करते तो फिर नहीं कर सकते. बिल्कुल ऐसा ही. थैंक यू सो मच अनू फॉर योर रिस्पॉन्स. अच्छा, थ्योरी क्या कहती है, स्टडीज क्या कहती हैं? जो मैस्लो ने काम किया उसके मुताबिक ओनली 1% ऑफ द इंडिविजुअल कैन अचीव दिस लेवल परसेंट, और वो भी अडल्ट एज ग्रुप के अंदर जाके हासिल किया जा सकता है. और अब्राहम मैस्लो के मुताबिक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत रेयरली लोग इस लेवल तक पहुंचते हैं. ओके, और इसमें कहा जाता है कि जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को स्टडी किया, उनके नज़दीक कोई एज, जेंडर, रेस या कोई भी इस किस्म की डेमोग्राफिक चीज़ों से रिलेटेड कोई डिस्क्रिमिनेशन इस कॉन्सेप्ट के हवाले से नहीं है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू बिकम सेल्फ एक्चुअलाइज. मतलब हम अपनी बात तो कर रहे हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे कि ये है, ऐसे है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक बड़ा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हाउ टू बिकम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हम इस लेवल तक पहुंचने, हम कैसे पहुंच सकते हैं, या हम इस स्टेज को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, कौन कौन से वेज हैं जिनको अडॉप्ट करना पड़ सकता है, कौन से मैकेनिज्म्स हैं, या फिर कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनको फॉलो करने की जरूरत है. उनमें सबसे पहले जो कि आई थिंक हर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का एक बेसिक स्टेप होता है, दैट स्टार्टेड विद द एक्सेप्टेंस. इंसान अपने आप को तस्लीम करे
आप इस चीज़ को सीखें कि आपने अपनी अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करना है। हम अक्सर तो ये करते हैं कि वी ऑलवेज लाइक गो फॉर एक्सेप्टेंस अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स ऑफ अस, क्या यार मेरे अंदर ये अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पे बात आती है नेगेटिविटीज़ की, जहाँ पे बात आती है हमारी वीकनेसेस की, जहाँ पे बात आती है हमारी कुछ लूप होल्स की, हमारी पर्सनैलिटी, तो हम उसको एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है और हमारी उसमें बहुत बड़ी रेजिस्टेंस आती है। ठीक है, जैसे अक्सर लोग अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल बी वेरी हैप्पी फॉर इट। ओके, मुझे लोग एडमायर कर रहे हैं, मेरी पॉजिटिव चीज़ों को एक्नॉलेज किया जा रहा है। लेकिन जब आपको आपकी पर्सनैलिटी का कोई नेगेटिव साइड या नेगेटिव एस्पेक्ट बताने की कोशिश करता है तो उस पर काफ़ी रेजिस्टेंस हमारे अंदर आती है, हम उस चीज़ को लाइक नहीं करते। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस की कमी होती है, जो कि एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज को हासिल नहीं कर सकते। सो इफ यू पीपल वांट टू अचीव द स्टेज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड इफ यू वांट टू बिकम अ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन, then it is very much important for you to learn to practice the exercise of acceptance, कि अपने आप को तस्लीम करना, अपनी अच्छाई बुराई हर चीज़ के समेत। लिव स्पॉन्टेनियसली, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें, अपनी ज़िंदगी को एक विद ओपन हार्ट एक्सेप्ट करें, अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उनको एक्सेप्ट करके चलें। फिर यहाँ पे भी बात अगेन एक्सेप्टेंस की आती है कि हम शायद आसानी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वी ऑलवेज वांट कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे, बहुत स्मूथ गुजरे, कोई इसमें टफ टाइम ना आए। तो फिर तो वो लाइफ ना हुई ना, लाइफ तो आपकी दैट इज़ ऑल अबाउट द चैलेंजेस, दैट इज़ ऑल अबाउट टू फेस द डिफिकल्ट टाइम्स एंड अंटिल एंड अनलेस यू विल नॉट फेस एनी चैलेंज, यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्ट टाइम, अगर आप किसी भी मुश्किल घड़ी से नहीं गुजरेंगे, सो मे बी यू आर नॉट एबल टू गेट नॉलेज और टू गेट एक्सपीरियंस अबाउट कि जो आपकी ज़िंदगी में आसानी है उसकी क्या वर्थ है। सो आई थिंक लाइफ में जो मुश्किलात आती हैं उनको भी हमें खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो अच्छे वक्त हैं, जो अच्छे मोमेंट्स हैं, जो अच्छी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं, तो उनको डेफिनेटली हम लोगों को एक्सेप्ट करना ही चाहिए। गेट कंफर्टेबल विद योर ओन कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम इस चीज़ को बड़ा शाय फील करते हैं। हैव यू एवर ट्राइड कि आपने कभी किसी रेस्टोरेंट में अकेले बैठ के खाना खाया हो, अकेले बैठ के कॉफ़ी पी हो, अकेले चाय पीने के लिए गए हो? हम अपनी कंपनी को एंजॉय करने से डरते हैं। ठीक है, मतलब हमें लगता है कि हमारे साथ किसी ना किसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ शायद एक आप समझ लें कि एक लिमिटेशन हो सकती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक जाने के लिए, कि इंसान को अपनी कंपनी के साथ कनेक्टेड रहना, अपने साथ कनेक्टेड रहना और उसको एंजॉय करना और कंफर्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू प्रैक्टिस दिस, देन आपके लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक जाना आसान हो सकता है। ओके, अप्रिशिएट द स्मॉल थिंग्स इन द लाइफ। हम सब बड़ी-बड़ी चीज़ों को वेट करते हैं कि अच्छा कोई बड़ा इवेंट होगा, कोई बड़ी खुशी होगी तो हम उसको अप्रिशिएट करें। नो, ज़िंदगी में आने वाली छोटी से छोटी खुशी, छोटे से छोटे मोमेंट को भी एंजॉय करें, उसको भी अप्रिशिएट करें, बिकॉज़ वो आपकी लाइफ का पार्ट है। ठीक है, और वो आपके साथ लिंक्ड है, अच्छी है, बड़ी है, छोटी है, जो भी है, लेकिन वो आपको एक एक्सपीरियंस, आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट बना के जा रही है वो चीज़। लिव ऑथेंटिकली, बिल्कुल ऑथेंटिक होके रहें, रियलिस्टिक होके रहें। एक फैंटेसीज़ में होना भी अच्छी चीज़ है, लेकिन रियलिस्टिकली ज़िंदगी को लेके चलना आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रियलिस्टिक होने के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ हम जिस एरा में रह रहे हैं, यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकली और रियलिस्टिकली नहीं चलेंगे, और जितना फास्ट टाइम हो रहा है और जितना तेज़ी से लोग आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया आगे जा रही है, आई थिंक हमें उसके लिए रियलिस्टिक, ऑथेंटिसिटी और इसके साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच का हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। वो तभी हो सकती है जब हमें पता हो कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। ठीक है? डेवलप द कंपैशन, अपने अंदर एक कंपैशन वाला एलिमेंट बिल्डअप करने की कोशिश करें, चीज़ों के साथ एडजस्ट करना सीखें, कंपनसेट करना सीखें, अपनी पॉजिटिविटीज़, नेगेटिविटीज़ दोनों को साथ लेके चलें और अपनी ज़िंदगी को उन दोनों चीज़ों के साथ एडजस्ट करना है हम लोगों ने। एंड इफ़ यू फेस डिफिकल्टी इन performing any of these things which I have discussed with you, so I think here you need to be be open in front of your psychologist, talk to a therapist, get help from a counselor, so आपको काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प मिल सकती है। Okay, so hopefully ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। Okay, उमैर अहमद and someone else has raised the hand, please। जी उमैर। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं? Yes उमैर। कुछ समझ नहीं आ रहा। उमैर, do you want to say something? नहीं कहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? कुछ भी। Like for example, कुछ भी what? जो भी आप समझा रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। Then समझने की कोशिश करें। At the end of this session, I will ask you, okay? Okay. जी next please। किसी और को मैडम मैं पूछ रहा था कि स्मॉल थिंग्स को हम कैसे अप्रिशिएट करें, उनका थोड़ा सा क्लियर कर दें फ्रॉम उमैर हमजा।
ओके उमैर हमजा, छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करने की जहाँ तक बात आती है, जैसे आपकी लाइफ में कोई भी एक छोटा सा मोमेंट है, ठीक है, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप उस पर भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। कुछ आपके साथ अच्छा होता है, आप उसको भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। पॉजिटिव फीलिंग को कैच करना है हम लोगों ने बेसिकली, और हम जितना पॉजिटिविटी को अपने अंदर रखेंगे उतनी हमारी लाइफ हमारे लिए आसान होती जाएगी। Hopefully it gets clear to you. Okay, thank you. Should we move for the next topic? Okay. बाकियों को तो समझ आ रहा है ना? You can give me the feedback. साथ साथ बताते जाएं. Okay. Okay, thank you. Thank you so much for your responses. Please move to the next slide. Alhamdulillah. Okay. What behaviors lead to self actualization? इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसान के कौन से रवैये हैं जो उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक लेके जाने में हेल्प कर सकते हैं। सो उसमें है टू बिकम द सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल शुड एम्ब्रेस हु दे आर, जो कि हमने बात की कि हम कौन हैं, हमने उस चीज़ को पहचानना है, हमने जानना है कि हमारी क्या वीकनेसेस हैं, हमने अपनी ज़िंदगी के पॉजिटिविटीज़ अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है। सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इंडिविजुअल्स डू नॉट अलाउ अदर्स टू इन्फ्लुएंस हाउ दे एक्ट। आपकी अच्छाई बुराई आपको जब खुद पता होगी तो आप दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में इतना जल्दी नहीं आएंगे और कोई दूसरा इंसान आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकेगा। एक्सटर्नल प्रेशर्स फ्रॉम पीयर्स, सोसाइटी, सोशल मीडिया कैन कॉज पीपल टू मूव अवे फ्रॉम देयर ट्रू पाथ्स। अक्सर इस तरह से होता है कि जब हम खुद को नहीं पहचानते हैं तो एक्सटर्नली जो फैक्टर्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं, एंड इट कैन लीड्स टू आवर स्टेज के जहाँ पे शायद हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली, और हमारे लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज को हासिल करना मुश्किल हो जाता है। सो if you people has decided to reach up to the level of self actualization, तो आपका बिहेवियर इस तरह का होना चाहिए कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, अपनी लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड करें, आइडेंटिफाई करें, एंड जो भी चीज़ आपके अंदर है आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंटली चलें। नेक्स्ट। ओके, सो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स जो कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इंडिविजुअल को एग्जिबिट करनी चाहिए। सबसे पहले टू फाइंड आउट द ह्यूमर्स इन द गिवन सिचुएशन, कि जो भी सिचुएशन है उसमें जो आपकी ज़िंदगी की जो भी अच्छी चीज़ है, जो भी आपके लाइफ में आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, उसमें से पॉजिटिव एस्पेक्ट को ढूंढने की कोशिश करें। गेट एंजॉयमेंट एंड सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम माइंडफुलनेस कहते हैं साइकोलॉजी में, कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अपने आज में जिंदा रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर लोग स्टक होते हैं अपनी पास्ट में, जो ऑलरेडी हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ गुजर चुकी होती है, हमारे लिए उससे निकलना मुश्किल होता है। उससे होता ये है कि हमारा आज भी खराब होता है और आने वाला टाइम भी हम लोग अपना स्पॉइल कर देते हैं। सो अपने प्रेजेंट मोमेंट में रह के उसको एंजॉय करना, उससे सेटिस्फेक्शन को हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट द नीड इन ऑर्डर टू गेन अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि आपको क्या चीज़ खुश करती है, आपको क्या चीज़ सेटिस्फाई करती है, उन चीज़ों को अपने लाइफ में शामिल करना भी इंपॉर्टेंट है। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड बिहेवियर को लीड करते हैं। जी प्लीज नेक्स्ट। देयर आर लॉट ऑफ अदर एग्जांपल्स एज वेल, बट यहाँ पे 2 से 3 मेंशन की हुई हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, हु इज सेल्फ एक्चुअलाइज्ड सेलिब्रिटीज। ना क्वेश्चन ये आता है कि आपको कौन सी ऐसी रियल लाइफ एग्जांपल्स मिल सकती हैं जिन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव, जहाँ पे बहुत सारे नाम जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन है, अब्राहम लिंकन है, विलियम जेम्स हैं, एल्बर्ट श्वेट्जर हैं, एलन रसेल वॉल्ट हैं, जिन्होंने अपनी एबिलिटीज, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान के उन लोगों ने एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है जो कि शायद रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। इसके अलावा अगर हम ये तो कुछ नाम है, बहुत सारी और भी सेलिब्रिटीज हो सकती हैं जिनको अगर आपने कभी स्टडी किया हो तो आपको शायद आज का वेबिनार सुन के आपने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्सनालिटी के साथ लिंक किया होगा। जी नेक्स्ट प्लीज। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि हम किस एज में जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर सकते हैं, मतलब कौन सी उम्र है कि जिसमें एक इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक पहुंच सकता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी एज है? बचपन में हो सकता है बंदे का। ओके जी, काफी सारे लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि एज मैटर नहीं करती, 25 to 40 प्रोबेबली। ओके, कोई एज लिमिट नहीं है, ट्रू।
अच्छा, इसमें जो स्टडीज कहती हैं वो ये कहती हैं कि एक इंसान का जब एक एडल्ट लेवल स्टार्ट होता है बचपन में तो खैर पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। आई थिंक दिस कैन जस्ट बी अ पार्ट ऑफ ह्यूमर या लाइटर नोट पे हम इसकी बात कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। ओके जो आपकी स्टडीज कहती हैं या जो थ्योरी कहती है कि आफ्टर द एज ऑफ 35, ठीक है, जब इंसान अपने एक उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी होती है, इंटेलेक्चुअली इंसान स्ट्रांग हो चुका होता है, अपने करियर में आगे जा चुका होता है, लाइफ की उसको समझ आ चुकी होती है और जिंदगी के चैलेंजेस को, जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को वो समझना शुरू कर देता है, तो उस एज के बाद जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को इंसान अटेन कर सकता है और डेफिनेटली वो आपकी 35 इयर्स की एज तक ही पॉसिबल होता है। यस, नेक्स्ट। ये सार्वजनिक क्या वजह है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। What are the 9 characteristics of the self-actualized people? इस पे शायद हम लोगों ने पहले भी बात की, लेकिन स्पेसिफिकली कुछ और पॉइंट्स थे जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इंसान के अंदर कुछ, ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है? अच्छा ठीक है। If you have any sort of question, then you may ask at the end of the session, please. अच्छा। Anyways, so 9 characteristics of a self-actualized people. कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला, the person must be purposeful. एक इंसान को, एक वो इंसान जो जिसको अपनी जिंदगी में एक मकसद की समझ आ गई हो, ठीक है, एक्सेप्ट themselves, रियलिटी के साथ चले, अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करके चले, सेल्फ स्टार्टर्स, खुद से इनिशिएटिव लेने वाला इंसान हो, जिसके अंदर ये टैलेंट हो कि उसको पता हो कि उसने जिंदगी को कैसे आगे लेके चलना है। दे पुट देयर स्ट्रेंथ्स टू वर्क, सिर्फ अपनी सलाहियतों को पहचानना नहीं है, उनको उन पे अमल भी करना है, उनको प्रैक्टिकली भी फॉलो करना है, ठीक है। दे डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर पीपल, दूसरे लोगों से वो इन्फ्लुएंस नहीं होते, उनको अपनी स्ट्रेंथ्स, अपने टैलेंट्स, अपने स्किल्स का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा होता है। एंड दे हैव द प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, और उनका माइंडसेट ये होता है कि अगर जिंदगी में कोई भी मसला या परेशानी आता है तो उन्होंने उसको कैसे टैकल करना है, कैसे मैनेज करना है। मैम हमें इंग्लिश आती है, हम खुद भी पढ़ सकते हैं, आप बस ऐसे कोई आ Please रहा mute है। your mic. You can ask questions after the session in the group. Who is he? Thank you, Adiba. No worries, ma'am. Okay, thank you. Okay जी, so hopefully ये वो characteristics हैं जो कि अगर हम जिनको अंडरस्टैंड करें तो हमारे लिए भी आसानी हो सकती है कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है ईगो एक्चुअलाइजेशन का भी। ईगो क्या होती है? मतलब कभी आपने सुना है ईगो के बारे में? अक्सर वैसे हम ये लेमन टर्म बहुत यूज की जाती है कि इसमें ईगो बहुत है, ये ईगोइस्टिक है। सो आप ईगो के वर्ड को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? अना, ओके, अना नहीं, अना तो मुझे समझ आ गई, लेकिन है क्या ईगो? मतलब अना को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? इंसान का मिजाज, self-satisfaction, inner voice, selfish one, feeling of pride, self-importance, a limitation, ऐसे इंसान जो अपने मौक़िफ़ से ना हटे। ओके, ठीक है। सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इंपॉर्टेंस। ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज। ईगो का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ईगो ये एक इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी रखी है दैट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के दरमियान जो तमीज़ पैदा करती है जो चीज़, उसको हम ईगो कहते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द ईगो एक्चुअलाइजेशन, सो रॉजर्स was the person who stated that when a person self actualizes, they fully accept themselves, there is no strive to become different than you already are, and through that you show up as your true self. रॉजर्स ने ईगो एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के साथ थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, इन द सेंस कि अगर इंसान अपने आप को फुली जानना शुरू कर दे, या इंसान अपनी पहचान रखना शुरू कर दे, या अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, तो वो दूसरे इंसान से काफी हद तक मुख्तलिफ होकर जिंदगी में आगे चल सकता है और जिंदगी के राइट एंड रॉन्ग डिसीजंस वो बहुत इफेक्टिव तरीके से ले सकता है। और बेसिकली ईगो एक्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रू सेल्फ के साथ लिंक्ड है कि ईगो एक्चुअलाइजेशन वो चीज़ है जो इंसान को अपने ज़ात के साथ बहुत क्लोजली कनेक्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट प्लीज। व्हाट आर द 7 क्वालिटीज ऑफ अ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन? एक्चुअलाइज्ड आई थिंक टाइपिंग में रह गया कहीं। अच्छा, वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए, रीजनिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, फ्री विल, मोटिवेशन, स्पिरिचुअलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, डिस्क्रिमिनेंट, लव, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिल, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि अगर प्रेजेंट हैं तो इंसान सेल्फ एक्चुअलाइज हो सकता है। यहाँ पर उस स्टेज को हासिल करना उस इंसान के लिए आसान हो सकता है। अब नॉट नेसेसरी कि हर इंसान के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ प्रेजेंट हों।
अब किस तरह से होगा कि किसी में 1 होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी या 2-3 एक साथ होंगी, कोई 1 होगी, तो आप उन क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करें और उनके बेस पे अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज की तरफ मूव करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए हर वो पॉजिटिव स्ट्रेंथ, हर वो पॉजिटिव स्किल या क्वालिटीज को आप इनकाउंटर कर सकते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किन 3 पिलर्स के ऊपर बेस करता है? सबसे पहली चीज है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी ही बेसिक वो फाउंडेशन है जो आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पिलर की बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा। सेकंड इज सिंप्लिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। थर्ड इज नेचरलेस। स्पॉन्टेनिटी एक तसलसल के साथ चीजों को लेके चलना, सिंप्लिसिटी सादगी के साथ लेके चलना, और नेचरलेस के रियलिस्टिक या फितरतन जो चीज इंसान के अंदर है उसके हिसाब से लेके चलना। तो ये तीनों फैक्टर्स आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पिलर्स कहलाते हैं और ये आपको अपने आप को पहचानने में, अपनी खुदी को इंक्रीज करने में, इंप्रूव करने में और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज को हासिल करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बीइंग अ मुस्लिम हम इस्लामिक टीचिंग्स को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह है कि हमारा दीन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में क्या कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी कि इस्लाम ही वो सबसे पहला मजहब है जिसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को फोकस किया, जिसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या अपने आप को पहचानने की बात पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा हम अगर कुरान और हदीस की नज़र में इसको देखें तो आप अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। कुरान में काफ़ी सारी आयात हैं और इसके अलावा हदीस भी काफ़ी सारी इस तरह की पाई जाती हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही हैं। सो एनी वन ऑफ यू वांट टू कोट एनी वर्स और एनी हदीस जो आपके नज़दीक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या खुद आगाही, हकीकत पसंदी की तरफ डिनोट कर रही हो तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, अल्लामा इकबाल का बड़ा फेमस एक शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आई थिंक ये खुलासा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। इन अल्लामा इकबाल के कहे गए इन 2 अशार में आई थिंक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की सारे कॉन्सेप्ट की समरी है जो हमने इतनी बात की, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक शेर काफ़ी है। खुदी अपने आप को पहचानना, अपनी सलाहियतों को बुराकार ला के अपनी शख्सियत को निखारना बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाता है। आपको इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी पॉजिटिविटीज के बारे में आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन। होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। सो नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन आंसर सेशन, इफ समवन हैज एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क। Yes, please. Hina Aziz want to ask question? Thank you, Hina, for your feedback. If there is any question, so I'm here to answer. जी, Can a person be self-actualized? एक minute. There is a question by Sara Iftikhar. Can a person be self-actualized without fulfilling lower levels? No. Until and unless आपके lower levels achieve नहीं होते, इंसान self-actualization की तरफ नहीं जा सकता। ठीक है? जी, हेलो। जी जी प्लीज। जी मैम, ये पूछना चाहती हूँ कि देखें, अगर कोई फर्द जो है, ठीक है आपने बताया 1% तक लोग इस स्टेज तक पहुंचते हैं, लेकिन जो स्ट्रगल कर रहे हैं और पहुंच भी जाते हैं, कुछ किसी ना किसी लेवल तक पहुंच जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के, तो ये भी देखा गया कि बहुत से अफराद थोड़ा सा प्राइड और थोड़ा सा एरोगेंस वगैरह भी उनमें आता है जब उनको अपनी सलाहियतों के बारे में इल्म होता है और वो अचीव भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो इस चीज से कैसे बचा जा सकता है? ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। अच्छा, अब इसमें ये है कि अगर आपके अंदर ईगो है, आपको ईगो है या ईगो नहीं, जिसको आपने अभी कहा, आपने एक टर्म यूज की एरोगेंस, यस, इंसान के अंदर गरूर है तो फिर तो आई थिंक वो इंसान सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कब कह रहे हैं कि वो कंप्लीट होता है, जब इंसान अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ साथ अपनी वीकनेसेस को भी अंडरस्टैंड करे। ठीक है, तो जब आप अपनी कमजोरियों को, आप अपनी गलतियों को बिल्कुल साइड लाइन करके सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे तो वो तो चीज जाहिर है आपको तकब्बुर की तरफ ही लेके आ जाएगी ना। वो तो इंसान समझेगा कि पता नहीं मैं क्या हूँ। ठीक है, लेकिन जब इंसान को पता है कि यार मेरे अंदर अगर ये अच्छाई, मेरे अंदर ये कमजोरी भी है जिसपे मैंने काम करना है, तो वो चीज है जो जी जी। लेकिन ये भी होता है कि बहुत से अफराद हैं, उनकी बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन वो उसको नेगेटिवली यूज कर रहे हैं, दुनिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और वो बहुत अपर स्टेज पर पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं है। जहाँ पे आप किसी दूसरे के लिए नुकसानदेह हो, वो चीज आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं कहलाती। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन?
Yes, Noor. मैम आई वांट टू आस्क कि आपने कहा कि एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको तब मिलती है व्हेन यू हैव अ पर्पस इन लाइफ, ठीक है? तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि हैविंग अ पर्पसफुल लाइफ, लाइक उसके लिए हमें गोल चाहिए होता है। लाइक मैं सिर्फ इस चीज़ में कंफ्यूज हूँ, लाइक बिफोर दिस सेमिनार टू मुझे इस चीज़ में समझने में डिफिकल्टी हो रही है कि एक पर्पसफुल लाइफ होती क्या है। लाइक वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस टू टाइप ऑफ लाइफस्टाइल फॉर अ वुमन, लाइक दे maybe they are going towards the housewife thing, or they are achieving something in the social life, like they are doing something in the offices and they are up to something. तो इन दोनों में से पर्पसफुल लाइफ किस किस बंदी की है? देखो, दोनों का पर्पस है, ठीक है? हम पे कि यार जो काम कर रहा है बंदा तो उसी की लाइफ पर्पसफुल है। आपको क्या लगता है कि जो औरत घर में बैठ के काम करती है वो उसकी जिंदगी में मकसद है? नो, वो भी अपनी जिंदगी में कुछ स्ट्राइव करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए कोशिश करती है, उसके भी जिंदगी के टास्क हैं। पर्पस बेसिकली क्या है? टू सेट समथिंग इन योर लाइफ टू अचीव। पर्पस सिर्फ बहुत बड़े बड़े गोल्स नहीं होते कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने इस फील्ड में जाना है। आप अगर छोटा से छोटा स्टेप भी अपने लिए सेट करते हो कि आज मैंने उठ के ये काम करना है, तो वो भी एक मकसद है जो आपकी जिंदगी का सेट हो रहा है। तो हम इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते दो केसेस में। और पर्पसफुल आप इसमें सिर्फ एक पर्पस पे भी आप फोकस नहीं कर सकते कि बस जिंदगी का एक मकसद है, अगर आपको आपकी जिंदगी में वो मकसद है तो आप सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होंगे। नो, अगर आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है तो इंसान सेल्फ एक्चुअलाइज होने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो ये सारे एलिमेंट्स कंबाइन होकर इंसान को सपोर्ट करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाने में। और जब तक आपकी बामकसद जिंदगी नहीं है, आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जा। ओके, थैंक यू। एग्जैक्टली, जो हाउसवाइफ से एक फीडबैक आया कि हाउसवाइफ जो है वो अपनी फैमिली की वेलबींग के लिए काम कर रही हैं। इफ अ फीमेल इन द हाउस इज वर्किंग, वो खाना पका रही है, वो सफाई कर रही है, किसके लिए कर रही है? उसका भी कोई मकसद है कि उसकी फैमिली यूनिट हेल्दी रहे, उनकी वेलबींग का ख्याल रख रही है ना। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Thank you so much, everyone who were there to attend this session. Thank you, ma'am, for your precious time. Thank you. With this, our session comes to end. Now, I would like to invite our manager of event management team, Miss Atya. Over to you, Miss. Okay, please, if you can give me a 1 minute. If you can give me a 1 minute. Sorry to interrupt you. There is a question by Sidra. Okay, someone Sidra Jinjua. She has mentioned कि theoretically चीज़ों को explain किया गया और जो qualities हैं या spontaneity का factor है, reasoning का factor है, creativity का factor है, उनको explain नहीं किया गया। तो वो तो चीज़ें एक itself एक बहुत अलग चीज़ है। हम लोग उस पर अगर वेबिनार करें तो आई थिंक वो एक एक फैक्टर पे बहुत डिटेल में हम लोग बात करने पे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज का ये सेशन था दैट इज ओनली फॉर 1.5 आवर, तो हमने उसके अंदर चीज़ों को कवर अप करना था। बेसिक जो हमारा टॉपिक था हम उसी के ऊपर सेंटर्ड होकर बात कर रहे थे। सो हम कमिंग टाइम में फोकस करेंगे कि हम रीजनिंग, स्पॉन्टेनिटी या कुछ क्वालिटीज वाला टॉपिक है हम उसको भी फोकस करें।
Yes, thank you so much to you and your organization for giving this opportunity to me. This is a very good platform, and I wish you very good luck for your coming time. Thank you so much. Yes, very thankful to all of them that they have just given the time to this webinar. Thank you. Thank you, Allah Hafiz. कि यार जो काम कर रहा है बंदा तो उसी की लाइफ पर्पसफुल है। आपको क्या लगता है कि जो औरत घर में बैठ के काम करती है वो उसकी जिंदगी में मकसद है? नो, वो भी अपनी जिंदगी में कुछ स्ट्राइव करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए कोशिश करती है। उसके भी जिंदगी के टास्क हैं। पर्पस बेसिकली क्या है? टू सेट समथिंग इन योर लाइफ टू अचीव। पर्पस सिर्फ बहुत बड़े बड़े गोल्स नहीं होते कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने इस फील्ड में जाना है। आप अगर छोटा से छोटा स्टेप भी अपने लिए सेट करते हो कि आज मैंने उठ के ये काम करना है, तो वो भी एक मकसद है जो आपकी जिंदगी का सेट हो रहा है। तो हम इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते दो केसेस में। और पर्पसफुल आप इसमें सिर्फ एक पर्पस पे भी आप फोकस नहीं कर सकते कि बस जिंदगी का एक मकसद है। अगर आपको आपकी जिंदगी में वो मकसद है तो आप सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होंगे। नो, अगर आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है तो इंसान सेल्फ एक्चुअलाइज होने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो ये सारे एलिमेंट्स कंबाइन होकर इंसान को सपोर्ट करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाने में। और जब तक आपकी बामकसद जिंदगी नहीं है, आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जाते। Okay, thank yes, you. exactly. जो हाउसवाइफ से एक फीडबैक आया कि हाउसवाइफ जो है वो अपनी फैमिली की वेलबींग के लिए काम कर रही हैं। इफ अ फीमेल इन द हाउस इज वर्किंग, वो खाना पका रही है, सफाई कर रही है, किसके लिए कर रही है? उसका भी कोई मकसद है कि उसकी फैमिली यूनिट हेल्दी रहे, उनकी वेलबींग का ख्याल रख रही है ना। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Thank you so much, everyone who were there to attend this session. Thank you, Ma'am Farah, for your precious time. Thank you. With this, our session comes to end. Now, I would like to invite our manager of event management team, Miss Atya. Over to you, Miss.
Okay, please, if you can give me a 1 minute, if you can give me a 1 minute, sorry to interrupt you. There is a question by Sidra. Okay, someone Sidra Jinjua. She has mentioned कि theoretically चीज़ों को explain किया गया और जो qualities हैं या spontaneity का factor है, reasoning का factor है, creativity का factor है, उनको explain नहीं किया गया. तो वो तो चीज़ें एक itself एक बहुत अलग चीज़ है. हम लोग उस पे अगर webinar करें तो I think वो एक factor पे बहुत detail में हम लोग बात करने पे जा सकते हैं. ठीक है, तो हमने आज का ये सेशन था, that is only for 1.5 hour, तो हमने उसके अंदर चीज़ों को cover up करना था. बेसिक जो हमारा टॉपिक था, हम उसी के ऊपर सेंटर्ड होकर बात कर रहे थे. सो हम कमिंग टाइम में फोकस करेंगे कि हम रीजनिंग, स्पॉन्टेनिटी या जो क्वालिटीज वाला टॉपिक है हम उसको भी फोकस करें. Yes, thank you so much to you and your organization for giving this opportunity to me. This is a very good platform, and I wish you very good luck for your coming time. Thank you so much. Yes, very thankful to all of them that they have just given the time to this webinar. Thank you.